हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है हिस्ट्री का चैप्टर, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 9, द एस्टेब्लिशमेंट एंड द एक्सप्लेनेशंस ऑफ द दिल्ली सुल्तान। देयर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। कहते हैं दिल्ली सल्तनत की स्थापना और उसके विस्तार जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये इंपॉर्टेंट हर एक क्लास के बच्चों के इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हम इसमें गुलाम वंश से लेके जो है अकबर तक की स्टोरी की जानने की हम कोशिश करेंगे। खलजी वंश की स्थापना से लेके जो है सारे जो है उनके चुनौतियों का भी हम यहाँ पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, और ये हर एक क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The one most important topic arrive here, a challenge faced by the Sultan. What is the challenge faced the Sultan here? With the establishment of the Mughal Empire, the rule of Delhi Sultans come to an end. During more than 300 years of its rule, the Delhi Sultans went through the various ups and downs, but is survived as the political force. Where would we like to be discussed their major challenge for the Sultan face here. Attack of Mongol and other. There is the most important here, attack of Mongol and other. Some there is an inception, there is a major threat to be a sultan come in the form of Mongol inventions. Mongol where is a nomadic groups who is inhabited their steppes, northern China and the east of Lake Baikal. There is a force of nomadics and empire. Under the Genghis Khan in the 12th century, there is a most important period time from a 13th century. As onward to the repeatedly is attack the Delhi Sultan. The Sultan, as a policy, appeased and them to the also at the time is a conformated. The Balban and Alauddin Khalji is a confronted them with the fully military mind. During the Khalji as a time, the Mongol under Kutugil's Khwazas were able to design into Delhi and causing a lot of damage. The last of significant attack of Mongol was by is a Thermosyrians during the reigns of Muhammad Tughlaq. A lot of energy and resource of the Sultan were spent in the facing this invention, but they could not be destroyed the Sultan. Another important attack which shocked the foundation of Sultan was by the Timur in 1398. The beginnings of the Delhi Sultan was a made event to the world by the Timur's invention of Delhi the 1398. Timur was a son of the chief of the Chattais branch of Turk. When to the invaded to the Indian, he was the master of almost all of Central Asia. Timur as invaded into the India was up and drawings red, and his the motives was to nationalize their wealth accumulated by the Sultan of Delhi over to last 200 years. Sultan Nasruddin was the wazir. Maluk is vassal face of Timur, but there is defeated. Timur is the entire Delhi, and there is stay for the 15 days only. There Timur entered Delhi, there is stay for the 15 days, and in order to the generally is a masses and the large number of Hindus and Muslims, including to women and children, were to the murder. There is a most important for here of 50
15 days, there is generally massive to a large number of Hindu and Muslim, including women, children, was murdered. Before leaving the India, Timur as invention indicated the downfall of Delhi Sultan. The Delhi is a Sultan that lost control over Punjab and Timur appointed to the Khizr Khan. There is a ruler of the Multan and who is a controller to Punjab also. After the fall of Tughlaq, his dynasty they occupied to Delhi and become a ruler of Delhi Sultan. He headed to the foundation of Sayal Descentes. The next here is the inner conquest of the nobility. There is the most important here. A 300 year of Delhi Sultan is a witness 5 dynastic rulers is over 8. There is the most important period time. There is a main reason for the change of the ancestries of the deposits of rulers was the constant struggle between to the Sultan and nobility is the Umara. The soon is after death of the Ayawak and there is started to fighting over to the question of successions. And finally Iltutmish is emerged to the victories. And Iltutmish is a create a group of loyal nobles called the Turkan-e-Chilaigani. There is a 40. There is a 40 is the most important for the exam view. After the death of the Iltutmish, various factions of the group of 40 as a got involved in their making their favorite son and daughter as the Sultan. In a 10 years, 5 Sultan were changed. There is a most important period time. In their year, 5 Sultan had changed. After that, a Sultan who occupied to throne is a Nasruddin Muhammad. For 20 years, hardly is ruled and one of the powerful noble Balban was a de facto of Sultan. There are same Balban is succeed Nasruddin after the death. Almost similar is the event happened after the death of the each powerful Sultan, Balban, Alauddin Khalji, Firoz Shah Tughlaq, and other. Since there was no well-defined law of the succession, each noble tried to the other. Crown is himself support some of favorite. Here there is a death Sultan. Finally, Afghan replaced the Turks as a Sultan with their succession of the is Bahlo Lodi. Bahlo Lodi is the most important. The next year of provisional kingdoms, there is the most important challenge here. Another consequence of this confest was the declaration of the independence by the various provisional is had in the regions. As a result, a number of independence is Afghan and the Turkish kingdoms emerged. The important one of such a state, whereas the Bengals is a Lakhwatis and Janpurs, Malwa, Gujarat, Mahavani's kingdoms is etc. The Kuwait is often this is a state where a war with the Sultan and this whole process is a weekend there is sultans here and resistance by the Indian chiefs. There is the most important here. The sultans had to face the resistance from the Indian chiefs at the regular interval. The Rajput chief is the Rajputana, Mehwar, Ranthambore and the Chitars as etc. The Varangals is a Devgiri and there's a Malwa is a decline to the south. The king of Dhar, Malwas and central India is a Jagannagar and there is Orisha and the host of the smaller chieftains and there is a constantly at a war even after successive defeated. All this struggle is a beacon the Sultan. The Delhi Sultan was considerably is a beacon after the Khalji and Tughlaq resigned. Finally, there is invention of the Bahadur in AD is a 1526. Both it is to an end. Now a much more centralized and strong empire under to the Mughals established itself in India and ruled it for a further period of more than 200 years. We will discuss it. It's in our next lesson on the Mughal rulers. The next is the most important chapter arrive. The Mughals rulers. Do not miss the watching. But before moving to be a Mughals, we provides you a brief account of the provisional kingdom. The next year, a rising of the provisional kingdom. You have read that is a process of degradations of the Delhi Sultan and had started to the degradation of design of Muhammad bin Tughlaq.
Muhammad bin Tughlaq is the most important. However, the Firoz Shah Tughlaq tried to control the situation but failed. During this period, some of the provisional ruler is declared they are independent from the rules of Sultaniya. They are most important. The next here is the Jaunpur. There is the most important here. Stay. There is Jaunpur was is a province in the eastern part of Delhi Sultan of Malik. Malik Sarwari was the governor of the Jaunpur. Soon he became the ruler of the Kanju, Khanzus, Khara and the Wad, Sandel and the Damalu is a Baruchis and Vihar and Tirut. So the Malik is a Sarwari did not be assumed their title of Sultan. There is the most important here, Malik here. And but they led down to the foundation of the Sharik densities. There is the most important here. But after the death of Malik, Sarwar is the AD is a 1399. His adopted sons Malik is a Karampur. They succeeded their throne. There is the assumed their title of Mubarak Shah, and thus was the first ruler of the square density. There is a Mubarak Shah was the ruler of the Jaunpur density, and during this time is a Muhammad Tughlaq, the Sultan of Delhi, was the puppet, and in the hand of is a Maulus Iqbal. Maulus Iqbal is undertook on the expedition to the recover is a Jaunpur, but is a fail. One is a Mubarak Shah is a death in the AD 1402. His younger brother Ibrahim ascended there is a throne and he ruled for the 34 years. During the Ibrahim, as a design to the relation between Delhi and Jaipur become a Waris, Ibrahim was the greatest ruler of the Sharik dynasty. Under the warm, Jaipur has become an important center of learning. The under is him, the Jaipur is involved to the district's architectures and which is known as the Sharik style of the architectures. And the most infamous there is a buildings was the Atla Masjid at Jaipur. And the Ibrahim's successor is a Muhammad conquered there is a fort of the Chunar, and he also tried to the conquerors is a Kapil but is a fail. He is awarded to Delhi but was defeated by the Behbos Lodi. Lodi is after there is a Muhammad is a Jaunpur versus the ruler of Muhammad Shah and Hussain Shah. The Hussain Shah is died in AD 1500. And with there is him indeed to the Shardik dynasty. They are most important here. The next here is the Kashmir. The Kashmir is also important. Is the Samahuddin Shah. Shamsuddin Shah is a AD 1339 was the first Muslim ruler of Kashmir. In the AD 1389, the Sikandar is ascending there is throne. He was the powerful and despotic rulers. And Sikandar died in the AD 1416 and his son Ali Shah ascended his throne. And after some years of brothers is a Shah Khan ascended there is a throne under to the title of Zainul Abidin. And the Zainul Abidin was the liberals and the Illuminatist ruler. To succeed of support all their groups. He is called back all such as a group who has been to the vanished by the Sikandar. His Abdullah is a Jaija and the prohibited is a cow slaughter. And there is a Janzul is al Abidins paid a great attention toward their economical growth of Kashmir. He himself was a great scholar of the Persian, that is Sanskrit, Tibetan and Kashmiri language. He is ordered to the translation of the Mahabharata and Rashtrangani, history of Kashmir into the Persian. There is a most important here translation on this period. Zainul Abidin is a sensation is a provided a big ruler. Is a taking advantage of the weakness is a measures hazards and related to the Bahabur is a conqueror to the Kashmir. In AD 1586 is a Kashmir was the annexed by the Akbar and become part of a Mughal empire. There is our next chapter. The next here is a Malwa. There is a Malwa was the southwestern provision of Delhi Sultan. It was a consequence by the Sultan Alauddin in the AD 1310
10, and they remained the part of Delhi Sultan till the death of the Firoz Tughlaq. And Dilwara Khan is the chair of their allegiances to Delhi in the AD 1401. After the invention of the Temur, he did not take their royal title of their Sultan. After the death of the Dilwara Khan in AD 1405, his son Allah Khan ascended their throne. There is acquired the title of the Hosus Kangsa. He made a Mandus his the capital. The Hindis Mahal is a Jama Masjid is Jahaz Mahal and the example of the Mandu architectures. And there are most important here. And the Hosan Shah was succeeded by the Ghazi Khan and who was deposed by the minister is Ahmad Khan Khalji in AD 1436. And the Muhammad assumed their title of Shah and later there is the foundation of the Khalji dynasty of the Malwa. Under the is a Muhammad Khalji, the Malwa is become stronger and preferred their kingdoms. He was generally king. According to the Faristo, he was the political elder and the learned person. Muhammad Khalji was followed by the Gyanuddins and there is another Deans. Muhammad is second. He ascended their throne to the Malwa in the AD 1500 is 10. He is called to the Madin and Rai is the powerful Rajput. The Kras is the Isdairols as the nobles and appointed him the prime minister. There is a predominance of the Rajput at the court and create the jealousies among the Muslims novel. The Sultan of Gujarat defected to Malwa and the ancient Malwa to Gujarat. The next state here, Gujarat. The Gujarat is the most important this time. The Gujarat has a way to the attack there is a border due to its geographically location and there is a fatality and Sultan is Ahmadun Khalji was the first. Alauddin Khalji was the first Sultan who is an exit to the Gujarat to Delhi as a Sultan. Then there is a reminder to under the Turkish governor. At the time of Timur's invasion, Zafar Khan was the governor of this province and he is the servant of the Alajanics of Delhi Sultan. In AD 1410, he became to the independent ruler of Gujarat. The most famous of Gujarat ruler was the Ahmad Shah as AD 1411 to the 1441. To extend his kingdom, he restricted to the Rajput state. Ahmad Shah founded to the city of the Ahmedabad after the death of his Ahmad Shah in AD 1441. His eldest son Muhammad Shah is ascended the throne. There was a known as a Jar Vaksh. He was killed by the conspirators in the AD 1451. Muhammad Shah was followed by two weak rulers. Noble rise to the Fateh Khan and grandson of the Ahmad Shah to be thrown. He is the ruled as Ahmad is a Muhammad was the West is the ruler of the century and the ruler for the 52 years. Is a Muhammad died in AD 1511. He was the following by the number of ruler who had is very design. In AD 1572 is Akbar conquered to Gujarat and Azikt it is the Mughal Empire. The next is the most important state here, Bengal. The Bengal was easternmost is the provinces of Delhi Sultan. Lack of properties is a means of transportation and is a communication create a difficulty in controlling these provinces. And through there is a Bengal was an exit to be Delhi Sultan. A number of time it is independence. There is the most important time. Number of time is again an independent. During the last is declared of the 12th century AD, Muhammad bin is a Bakshtiar is exit to the Bengal to conquer to the territories of Muhammad Gauri. But after his death, he is the successor declared there is independent with the support of the local people. The Balban force of Bengal to be accepted to the subsequently of there is a Delhi and appointment their son is a Bukhara Khan as it is a governor. Bukhara Khan it is a governor of Bengal but is the after the Balban as a death he is declared is Ovid independent.
Gyanauddin Tughlaq tried to solve the problem, but is patterning the Bengal into three independent administrative divisions, as namely Lakshman, Nautis, Satyagan, and his son Garon. There is a most important here divided by three parts. Muhammad bin Tughlaq tried to declare the supremacy of Delhi Sultan, but when he was busy and surprising to his rebellion in their other part of Sultan Bengal, cut off it is a connection with the Delhi. Haji evolves as a noble invited to Bengal and become its ruler under the title of Shamus ud Deen's Ilaziz Shah. To counter his increasing influence of the Haji's Ilaziz is further the Shah Tughlaq awarded to the Bengal but did not meet with the success, and he had to be signed a treaty with the Ilaziz. According to the state of the river of Koshi, once accepted was the boundary lives there between two kingdoms. Is a Haji's Ilaziz died in the AD 1357, and there is the most important time period. His son is Sikandar succeed the throne. When they are doing this is a resigned Firoz Shah Tughlaq against tried to annex to the Bengal but failed. After the death of Sikandar, the Gyanauddin's Azam is ascended their throne, and there is a maintenance of friendly relation with the king of China, which led to the rise of foreign trade. This time is Nasruddin is the grandson of the Haji's Ilaziz was the ruler of the Bengal. He is peacefully ruled from the 17 years. During the reign of the Alauddin Hussain Shah, is Bengal become a rich and prosperous. When his death is AD 1518, his son Nasib Khan, there is a throne is under the title of Nasir Uddin is a Nusrat Shah. In AD 1539, Sher Shah Suri defeated the Gyanauddin Muhammad Shah and made Bengal a part of his empire. They are most important. यहाँ पर अगर हम देखें तो जो कि हमारा चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसका अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर जो है सल्तनत के मुख्य चुनौतियाँ। देखिए, दिल्ली में कई राजा आए और कई राजा जो है अपने सल्तनत को आगे बढ़ाया भी, और इसी क्षेत्र को आधार बना के उन्होंने हर एक क्षेत्र को जो है विजय करने की जो है अपनी कामयाबी को झंडा गाड़े। लेकिन देखा जाए तो इसका कुछ हद तक जो है बहुत से सुल्तानों को इसका जो है काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसी चुनौतियों का जो है हम यहाँ पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और प्रकाश डालेंगे कि जो सल्तनत में जो है राजा ने राज्य किए उनको कौन कौन सी समस्याएं आए और किस क्षेत्र में जो है सबसे अधिक कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक रहेगा। चलिए देखते हैं सल्तनत के प्रमुख चुनौतियाँ किस प्रकार की थी। बात अगर हम करें स्टार्टिंग दिल्ली में जो है मुगल वंश की स्थापना के साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। यानी देखा जाए तो जैसे मुगल वंश को जो है आमंत्रित किया गया, यानी बाबर को जब आमंत्रण किया गया उसी समय से जो था यहाँ पर मुगल एम्पायर जो थी विस्तृत हो गई और उसके बाद जो है फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा जा सका। कहते 300 वर्ष से अधिक के शासनकाल में सल्तनत ने काफ़ी उतार चढ़ाव पर जो है एक राजनीतिक शक्ति के रूप में वर्चस्व कायम रखा। और यहाँ हम सल्तनत के समक्ष आई चुनौतियों पर जो है विस्तार पूर्वक प्रकाश डालेंगे और चर्चा करेंगे कि आखिर इसमें क्या हुआ। तो सबसे पहले हमारे समक्ष आता है मंगोल तथा अन्य शक्तियों द्वारा आक्रमण। चलिए देखते हैं क्या है। यानी सबसे पहले चुनौती के रूप में देखा जाए तो मंगोल तथा अन्य शक्तियों द्वारा आक्रमण। आखिर ये आक्रमण कितना हद तक सशक्त था। अपने शासन के साथ ही जो है सल्तनत मंगोल के आक्रमणकारियों के निशाने पर रही, क्योंकि हमेशा जो है मंगोल के निशाने पर ही ये सल्तनत था। और मंगोल कबालाई समूह थे जो उत्तर चीन तथा बकाइकल झील के पूर्व के मूल निवासी हुआ करते थे। उन्होंने चंगेज खां के नेतृत्व में 12वीं शताब्दी में साम्राज्य की स्थापना किया और 13वीं शताब्दी के बाद से ही उन्होंने भारत पर लगातार आक्रमण करते रहे। एक नीति के अंतर्गत सुल्तानों ने उन्हें प्रसन्न रखा तथा कई बार रोका भी। कहते हैं बलबन तथा अलाउद्दीन खलजी ने विशाल सैन्य शक्ति के मदद से उन्हें रोकने की भरपूर कोशिश की। खिलजी के शासनकाल के दौरान जो है कतलयुग ख्वाजा ने नेतृत्व में मंगोल दिल्ली तक पहुंचे तथा बहुत ही नुकसान पहुंचाया। कहते मंगोल द्वारा किया गया अंतिम महत्वपूर्ण हमला मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में जो है तरसमेरीन के नेतृत्व में हुआ था।
कहते हैं सुल्तान की शक्ति तथा संसाधनों का बड़ा हिस्सा इन हमलों को रोकने में जो है प्रयुक्त हुआ, किंतु ये हमले सल्तनत को नष्ट नहीं कर पाए। यानी देखा जाए सल्तनत को नष्ट नहीं कर सके क्योंकि रोकने में इन्होंने पूरी शक्तियां को जो है झोंक दिया। एक अन्य हमले जिससे सल्तनत से पूरी तरह जो हिलाकर रख दिया था वो हमला हुआ था 1398 में, जब तैमूर का हमला था। यानी देखा जाए 1398 में तैमूर के द्वारा किया गया हमला सबसे भयंकर और सबसे खतरनाक हमला था, जिसमें दिल्ली सल्तनत की जो है कमजोर स्थिति तैमूर के दिल्ली आक्रमण के बाद और कमजोर हो गई थी। तैमूर जो है तुर्कों को जो है चंगताई जाति के सरदार का पुत्र था और जब उसने भारत पर आक्रमण किया उस समय वह पूरे मध्य एशिया का सुल्तान था। भारत पर तैमूर द्वारा किया गया हमला टूट पाट वाला हमला था और उसका मुख्य उद्देश्य 200 वर्ष में दिल्ली के सुल्तानों द्वारा एकत्र की गई दौलत को लूटना था। सुल्तान नसरुद्दीन तथा उसके वजीर मुल्लू एक वसल ने जो हालांकि तैमूर का सामना करने की कोशिश की परंतु वे पराजित हुए। तैमूर ने दिल्ली में प्रवेश किया और 15 दिन तक रहा। उसने कत्लेआम का आदेश दिया और महिला बच्चे सहित बड़ी संख्या में हिंदू मुसलमान मारे गए। भारत छोड़ने से पूर्व तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत की नींव तक हिला दिया और दिल्ली सल्तनत के पंजाब में नियंत्रण खो दिया। तैमूर ने सुल्तान के शासक के रूप में जो है खिजर खान को जो है नियुक्त कर दिया, जिसका नियंत्रण पंजाब पर भी था। तुगलक वंश के पतन के पश्चात उसने दिल्ली पर नियंत्रण स्थापित कर लिया और सैयद वंश की जो है नींव डाल दी गई। कहते हैं उसके पश्चात कुलीन वर्ग की आपसी जंग वहां पर जारी रही। दिल्ली में देखा जाए तो कुलीन वर्ग की आपसी जंग जो है जारी थी। कहते 300 वर्ष के दिल्ली सल्तनत के युग में 5 वंशों का शासन देखा गया। यानी 300 वर्ष में 5 जो है वंशों ने यहाँ पर शासन किया और इन वंशों के परिवर्तित शासकों को सत्ताविच्छ होने में मुख्य भूमिका सुल्तान तथा कुलीनों यानी उमरों के संघर्ष ने निभाई। ऐबक की मृत्यु के तुरंत बाद ही वे उत्तराधिकारी के मुद्दे पर उलझ गए। ठीक है, यानी ये बहुत बड़ा जो समय अवधि था जहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के संघर्ष चलती रही। अंततः इल्तुतमिश विजेता बनकर उभरा। यानी इल्तुतमिश को जो है विजेता बनाया गया जो कि गुलाम वंश के अंतर्गत था। इल्तुतमिश ने वफादार उमरों का जो है समूह बनाया जिसे तुर्क ए चलहगानी यानी 40 कहा गया। यानी 40 सरदारों का एक संगठन बनाया गया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में रहता है और बीए में भी ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनता है। इल्तुतमिश की मृत्यु के उपरांत जो है 40 समूह के कुछ सदस्य अपने प्रिय पुत्र पुत्रियों के सुल्तान बनाने के जो है फिराक में लग गए और कहते हैं 10 वर्ष में 5 सुल्तानों को बदले गए, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात थी इस समय। इसके पश्चात जिस सुल्तान ने शासन किया वह नसरुद्दीन मोहम्मद था, जिसने लगभग 20 वर्ष शासन किया। बलबन कार्यकाली सुल्तान था और यही बलबन जो है नसरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात सुल्तान बना। और इसी के जो नीति रक्त नीति के विषय में जो है आप लोग जानते ही होंगे कि जो बलबन था अपने रक्त नीति के लिए बहुत काफ़ी फेमस था, क्योंकि इस समय बार बार हमला हो रहा था, बार बार लुटेरा हो रहा था। तो इसने जो है जो भी लुटेरा पकड़े जाते थे उसके शरीरों में क्या करते थे कि पूरे ही हड्डियों को निकाल के भूसा भर के चौराहों पर लटका देते, जिससे वजह से जो है उस समय अपराध होना कहा जाए तो हर संभव खत्म हो गया था। हर शक्तिशाली शासक की मृत्यु के पश्चात सामान्य घटना हुई। बलबन, अलाउद्दीन खलजी, फिरोज शाह तुगलक इत्यादि। कहते हैं उत्तराधिकारी कोई निश्चित नियम न होने की वजह से हर शक्तिशाली अमीर अपने पसंद के उत्तराधिकारी गद्दी पर बैठाने का सदैव प्रयत्न करते रहते थे। अंततः महदलोल लोधी को जो है सिंहासनारोहण के साथ अफगान में जो है सुल्तान पद की दौड़ से तुर्की को बाहर कर दिया गया। यानी देखा जाए तो बहलोल लोधी ने जो है अपना सिंहासन लिया और जो है लोधी वंश का यहाँ पर स्थापना किया। देखा जाए तो सबसे अधिक कठिनाई जो थी प्रांतीय शक्ति के अंतर्गत था। कहते हैं इस समय प्रांतीय शक्ति बहुत थी और सभी क्षेत्र में जो थे वहाँ पर सरदारों ने अपने आप को राजा घोषित कर रखा था और उन्हीं के कंट्रोल में कई प्रांत होते थे। तो प्रांतीय शक्ति होने के कारण जो है दिल्ली की बहुत कमज़ोर हो गया था। कहते हैं संघर्ष का अन्य रूप विभिन्न क्षेत्रों में विविध प्रत्ययों प्रमुख द्वारा स्वतंत्र का जो है झंडा बुलंद यानी झंडा बुलंद करना था। परिणाम स्वरूप कई स्वतंत्र तुर्क तथा अफगान शक्तियों का इस समय उदय हुआ।
ऐसे प्रदेशों में मुख्य थे बंगाल, लखनऊ, जौनपुर, मलवा, गुजरात और दक्कन का बहनवी राज्य। ये प्रदेश अक्सर जो है सल्तनत का दुर्बल बनना एक स्वाभाविक बात बन गया। आगे हमारे समक्ष आया भारतीय शासकों के विद्रोह। ये भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि भारतीय शासक जो थे हर समय कोई ना कोई विद्रोह का जो है झंडा लहरा रहे थे। ये चुप बैठना इनको आता नहीं था और ये हर समय भारत पर कोई ना कोई रूप रंग से अटैक करने की कोशिश करते रहते। सुल्तानों को भारतीय शासकों की चुनौती का भी सामना करना पड़ा था और राजपूताना के राजपूत सरदार मवार और अनभोर, चित्तौड़ आदि थे। कहते वरंगल, देवगिरी, दक्कन तथा दक्षिण में मलाबार धारा के राजा, मध्य भारत, मलवा, उड़ीसा में जयनगर तथा कई छोटे प्रांत पर मुख्य लगातार जय पराजय के पश्चात भी सल्तनत के साथ संघर्ष करते रहते थे। इन सभी संघर्षों के जो है सल्तनत को कमजोर करके रख दिया। कहते हैं जब अपने ही घर में लड़ते रहेंगे तो कैसे जो है आगे स्ट्रांग बना जा सकता है। तो यही हुआ कि भारत में जो थे शासक वो आपस में ही राजा को चुनौती दे रहे थे, जिसकी वजह से बाहरी आक्रमण ने पूरी तरह से जो है भारत पे कब्जा करने में सक्षम हो गए और उनको जो है हराने में भी सक्षम हो गए। खिलजी तथा तुगलक वंश के शासन के उपरांत सल्तनत की स्थिति बहुत काफ़ी कमज़ोर होती चली गई और सन 1526 में बाबर ने निर्णायक आक्रमण करके इसका अंत कर दिया, जहां इब्राहिम लोधी को हरा के जो है ये पानी कहते हैं बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट पानीपत का युद्ध था, जिसमें बाबर ने जो है विजय हासिल करके और यहाँ पर जो है अपनी शासन की जो झंडा दे दिया। यानी मुगल साम्राज्य का जो था यही से स्थापना हो गया, जिसका हम जो है अगले चैप्टर में चर्चा करेंगे, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा मुगल साम्राज्य। अब एक अधिक संगठित मुगल साम्राज्य भारत में स्थापित हुआ और उसने आगे 20 वर्ष तक शासन किया। उसके पश्चात है क्षेत्रीय शक्ति का उदय। देखिए, क्षेत्रीय शक्ति का उदय तब हुआ जब मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल से, यानी देखा जाए, आपको मैंने बताया भी था कि मोहम्मद बिन तुगलक एक पढ़ा लिखा लेकिन लोगों के सपोर्ट न होने की वजह से अनपढ़ कहलाया, क्योंकि जो भी नीति बनाता था उसके जो है अपने ही उसके विरोधी हो जाते थे, जिसके वजह से उसका सल्तनत जो था तहस नहस हो गया। इसलिए कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ा लिखा होने के पश्चात भी लोगों के सहयोग न मिलने से अनपढ़ कहलाया। मोहम्मद तुगलक की जो है शासनकाल से दिल्ली सल्तनत का विघटन आरंभ हो गया था, क्योंकि उस समय जो सोने के सिक्के बनाए जाते थे वो जो है पित्तल के रूप में कन्वर्ट हो गया। इसका कारण आपने पहले ही जान चुके हो। हालांकि फिरोज शाह तुगलक ने नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया, परंतु यह सफल हुआ। हर संभव कोशिश जो था असफल हुआ। कहते हैं जब अपने ही साथ नहीं देते हैं तो वो जो है सफल कैसे हो सकता है। इस अवधि के दौरान कुछ प्राचीन शक्ति ने खुद को सल्तनत के शासन को स्वतंत्रता घोषित कर भी दिया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्षेत्रीय शक्तियों का जो है उदय। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है जौनपुर। चलिए देखते हैं जौनपुर में क्या है। जौनपुर के अंतर्गत देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत की जो है पूर्वी भाग की ये प्रमुख समृद्ध शक्ति जौनपुर थी। यानी दिल्ली से पूर्व के क्षेत्र में जो था जौनपुर था, जो काफ़ी समृद्ध और शक्तिशाली था। मलिक सरवरल जौनपुर का शासक था और जल्द ही वो कन्नौज, कारा और अवध, सदील और दायमरू, बहराइच, बिहार तथा त्रिहुट की भी शासक बन बैठा। हालांकि उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया और उसने शर्की वंश की नींव डाली। यानी शर्की वंश का नींव जो है इसी के अंतर्गत डाला गया। कहते हैं सन 1399 में जो है मलिक सरवल की मृत्यु के पश्चात उसका गोद लिया पुत्र मलिक कर्णफुल सिंहासन में बैठा और उसने मुबारक शाह की उपाधि धारण की और शर्की वंश का जो है प्रथम सुल्तान भी बना। जहां मुबारक शाह जौनपुर का शासक था, उसी समय जो है महमूद तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना और मलुक इकबाल के हाथों की कठपुतली बन के रह गया। मलुक इकबाल की जो है जौनपुर के जीतने के प्रयास किया पर असफल रहे। सन 1402 में मुबारक शाह की मृत्यु के पश्चात उसका छोटा जो भाई इब्राहिम शासक बना, जिसके शासन अवधि 34 वर्ष तक रही। इब्राहिम के शासनकाल के दौरान दिल्ली और जौनपुर के संबंध मधुर नहीं रहे। इब्राहिम शार्की वंश का महान शासक था, जिसके शासनकाल में जौनपुर शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र बन के उभरा। उसके शासनकाल के दौरान विशेष प्रकार के जो स्थापित कला का विकास भी हुआ, जिसे स्थापित की शार्की शैली भी कहा गया। इस काल की प्रमुख इमारत जौनपुर की अटाला मस्जिद थी। इब्राहिम के उत्तराधिकारी ने चुनार के किले पर विजय पाई और उसने कलापी के विजय करने का भी प्रयत्न किया पर असफल हुआ। उसने दिल्ली पर आक्रमण किया पर बलहरोल लोधी ने उसे पराजित कर दिया।
कहते हैं महमूद के पश्चात मोहम्मद शाह का हुसैन शाह का शासनकाल चलता रहा और सन 1500 ईस्वी में हुसैन शाह की मृत्यु के पश्चात ही शार्की वंश का सदैव के लिए अंत हो गया। उसके पश्चात अगला जो है हमारा कश्मीर। देखिए कश्मीर का भी बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट महत्व था उस समय। कहते हैं सलाहुद्दीन शाह जो है 1339 ईस्वी में कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक बना और सन 1398 में सिकंदर गद्दी पर बैठा। यानी ये आपको लिए जो है कई जगह क्वेश्चन आ सकते हैं कि पहला जो है कश्मीर का मुस्लिम शासक कौन था। सलाहुद्दीन याद रखना है, सलाहुद्दीन ने 1339 में जो है कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक बना। ये कई एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। वह एक शक्तिशाली तथा वीर शासक था और सिकंदर की मृत्यु जो 1416 ईस्वी में हुई थी उसका पुत्र अली शाह गद्दी पर बैठा। कुछ वर्षों के उपरांत जो है उसका भाई शाह खान तैमूर ने अवधीन के नाम से गद्दी पर हासिल कर लिया। कहते हैं जैतून अवधीन उदार जो है बुद्धिमान शासक था और प्रत्येक समूह का समर्थन उसको प्राप्त था। इसके लिए उसने उन सभी संघों का आह्वान किया जिन्हें सिकंदर ने नष्ट करके रख दिया था। उसने जजिया कर को हटाया और गोवध पर जो है प्रतिबंध लगा दिया और जैन उल अवलदीन के कश्मीर के आर्थिक विकास पर विशेष बल देना शुरू कर दिया। वो फारसी संस्कृति, तिब्बत तथा कश्मीरी भाषा का बहुत ही विद्वान व्यक्ति में से एक था। उसने महाभारत तथा राजतरणी जो है कश्मीरी इतिहास के फारसी में अनुवाद की आज्ञा भी दी। यानी इसके समय अवधि में महाभारत और राजतरंगिणी का जो है कश्मीरी इतिहास में फारसी में अनुवादित किया गया। जनरल अवदीन के जो है उत्तराधिकारी कमजोर शासक साबित हुए और उनकी दुर्बलता का फायदा उठाकर बाबर ने एक जो है रिश्तेदार मिर्ज़ा हैदर ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया और सन जो है 1586 में अकबर ने कश्मीर के मुगल साम्राज्य में शामिल करके रख लिया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था। कहते हैं जहाँ ये स्टार्ट हुआ वहाँ पर जो है उनकी बेवकूफ़ी की वजह से बाबर ने जो है उस पर कब्जा कर लिया और सदैव के लिए जो है मुगल एम्पायर में मिला लिया। उसके पश्चात है मलवा। देखिए मलवा दिल्ली सल्तनत का दक्षिण पश्चिम क्षेत्र था और सन 1310 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन ने इसे जीता था और तथा यह फिरोज तुगलक की मृत्यु तक यह दिल्ली सल्तनत का ही हिस्सा बना रहा और सन 1401 में तैमूर के आक्रमण के पश्चात दिलवारा खान ने दिल्ली के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को उतार फेंका और उसने सुल्तान की शाही उपाधि धारण नहीं की। सन 1405 में दिलावर खान की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अला खान सिंहासन पर जा बैठा तथा होशांग शाह की उपाधि धारण कर ली। उसने माडू को अपनी राजधानी बना लिया और हिंदी महल, जामा मस्जिद तथा जहेज महल और माडू संस्कृति के कुछ नमूने थे। होशांग खान के पश्चात जो है गाजी खान सिंहासन पर बैठा और जिसने 1436 ईस्वी में उसके मंत्री महमूद खान समुचित कर दिया। यानी उसको जो है पराजित करके उसका अपना जो है अस्तित्व स्थापित कर लिया। महमूद के शाह की उपाधि धारण किया और मलाब के जो है खिलजी वंश की इसी समय स्थापना हुई। महमूद खिलजी के शासनकाल में मलाब शक्तिशाली तथा समृद्ध राज्य बन गया और फरिश्ता के अनुसार वह वीरनम, बहादुर तथा बुद्धिमान व्यक्ति था। महमूद के बाद उसके उत्तराधिकारी क्रमशः गयाउद्दीन, नसरुद्दीन आदि बने। सन 1510 ईस्वी में महमूद द्वितीय ने गद्दी संभाली और उसने जो दगाबाज अमीरों के दबाने के लिए वीर राजपूत मेदिन सराय को बुलाया तथा उसे अपना जो है प्रधानमंत्री नियुक्त भी किया। दरबार में राजपूतों के वर्चस्व ने ईर्ष्या के माहौल का जो है निर्माण किया और गुजरात के सुल्तान ने मलाब को हराकर उसे गुजरात का एक अंग बना लिया। अब गुजरात का अंग होने के कारण ये जो सल्तनत थी गुजरात के अंतर्गत आ गई। उसके पश्चात गुजरात की अगर हम इतिहास की बात करें तो कहते हैं गुजरात की भौगोलिक स्थिति कहते संपन्नता तथा उपजाऊ उर्वरकता से जो है आक्रमणकारियों ने सदा ही अपनी ओर आकर्षित किया है। कहते सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने गुजरात को दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाया। यानी दिल्ली सल्तनत का हिस्सा सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। इससे पहले गुजरात स्वतंत्र था। उसके बाद वह तुर्क शासकों को ही अपने अधीन रहा। तैमूर के आक्रमण के समय जाफर खान उस क्षेत्र का संचालन कर रहा था। उसने दिल्ली के प्रति अपनी निष्ठा को छोड़ दिया और सन 1410 में गुजरात का स्वतंत्र शासक बन बैठा। गुजरात के शासकों में सबसे प्रमुख शासक अहमद शाह था जो 1411 से लेकर 1441 ईस्वी तक शासन किया।
अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए उसने राजपूतों को नियंत्रण में रखा और अहमद शाह ने अहमदाबाद शहर की स्थापना भी उसी समय किया। यानी देखा जाए तो अहमद शाह के द्वारा अहमदाबाद शहर की जो है स्थापना किया गया। सन 1441 में अहमद शाह की मृत्यु के पश्चात उसका ज्येष्ठ पुत्र मोहम्मद शाह सिंहासन पर बैठा और वह जरबख्श के नाम से काफ़ी जाना गया। कहते 1451 में संघर्षकारियों ने हाथों उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि संघर्षकारियों की उसके क्षेत्र में काफ़ी थे और उन्होंने जो है उसकी मृत्यु का घात उतार दिया। उसके बाद मोहम्मद शाह के बाद 2 अयोग्य शासकों का समय चला। अमीरों ने अहमद शाह के पोते फहद खान को सिंहासन पर बैठाया। वह इस वंश का असफलतम शासक था। उसने जो कहते हैं 52 वर्ष तक शासन किया और उसके पश्चात कई उत्तराधिकारी हुए जिनके शासनकाल बहुत छोटे रहे। सन जो है 1572 में अकबर ने गुजरात को जीतकर मुगल शासक का इसे हिस्सा बना लिया। कहते हैं गुजरात को भी जो है बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट था, जिसको अंत में 1572 में अकबर ने जो है इस पर आक्रमण करके गुजरात को भी जो है अपने मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। इस तरह से जो है गुजरात का जो है विलय हो गया दिल्ली सल्तनत में। उसके पश्चात था बंगाल के राज्य। देखिए बंगाल की क्या हिस्ट्री है, बंगाल आखिर कैसे था और इसका क्या अवस्था थी। कहते हैं देखा जाए दिल्ली सल्तनत का सुदूर जो है पूर्वी क्षेत्र बंगाल था। यातायात और संचार के साधन के अभाव की वजह से इस क्षेत्र के नियंत्रण में काफ़ी कठिनाई आती थी। हालांकि बंगाल दिल्ली सल्तनत का ही हिस्सा बन गया था, परंतु कई बार उसने जो है स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक में मोहम्मद बिन बख्तियार ने बंगाल के जो है मोहम्मद गौरी द्वारा विजय क्षेत्र का ही एक हिस्सा बना दिया था। यानी देखा जाए तो 12वीं शताब्दी में जो है मोहम्मद बिन बख्तियार ने जो है बंगाल को मोहम्मद गौरी द्वारा विजय क्षेत्र का हिस्सा बना दिया गया, किंतु उसकी मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारियों ने स्थानीय जनता की सहायता से स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया और बलबन ने बंगाल को दिल्ली की अधीनता स्वीकारने का वाध्य भी किया तथा उसने अपने पुत्र जो है बुगर खान को वहां का शासक भी नियुक्त किया, किंतु बलबन की मृत्यु के उपरांत उसने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। गियाउद्दीन तुगलक ने इस झगड़े को सुलझाने का प्रयास किया तथा बंगाल के 3 प्रशासनिक इकाइयों में बांट दिया। कहते हैं लखनौती, सतगांव और जो है सोनानार गांव, ये तीनों नाम जो है बहुत काफ़ी विख्यात हुई। इसको बंगाल को 3 प्रशासनिक इकाई में बांटने का काफ़ी इम्पोर्टेंट था तत्व। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली को स्वतंत्र घोषित करने का प्रयत्न भी किया, किंतु जब सुल्तान अन्य विद्रोह को दबाने में व्यस्त था तो बंगाल ने खुद को दिल्ली से जो है एकदम अलग करके रख लिया। एक अभिजात हाजी इलियास ने बंगाल को पुनः संगठित करने की कोशिश भी किया। शहाबुद्दीन इलाही शाह ने बंगाल में गद्दी पर बैठा और हाजी इलियास के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए फिरोज तुगलक को बंगाल को जीतने का प्रयत्न भी किया, किंतु उसे असफलता ही हाथ लगी। उसे इलियास के साथ संधि करनी पड़ी और संधि के अनुसार दोनों राजाओं के बीच कोशी नियंत्रण रेखा बनी और सन 1357 ईस्वी में हाजी इलियास की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र सिकंदर गद्दी पर बैठा और उसके शासनकाल के दौरान फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल को सल्तनत को मिलाने का दोबारा प्रयत्न किया, किंतु वह पुण्य असफल हुआ और सिकंदर की मृत्यु के पश्चात गियाउद्दीन आजम सिंहासन पर का अधिकारी बन बैठा। उसने चीन के शासक के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध कायम भी किए, जिसे समृद्ध विदेशी व्यापार को जन्म दिया। इसके पश्चात नसरुद्दीन हाजी इलियास का पुत्र बंगाल का शासक बना और इसकी जो है शांतिपूर्ण शासनकाल 17 वर्ष तक चला। अलाउद्दीन हुसैन शाह के शासनकाल में बंगाल धनी संपन्न प्रदेश बन गया था। उसकी मृत्यु के पश्चात 1518 ईस्वी में नासिर खान सिंहासन पर जो है नसरुद्दीन नुसरत शाह के नाम से बैठा और सन 1538 में शेर शाह सूरी ने सुल्तान गियाउद्दीन महमूद शाह को पराजित कर बंगाल को अपने साम्राज्य का अंग बना लिया। तो इस तरह से जो है बंगाल का विलय हो गया, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था। अगला जो है हम करेंगे
मुगल काल साम्राज्य के विषय में यानी मुगल के विषय में करेंगे, विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आप इसी तरह त्रिपाण हिस्ट्री सेंटर के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण हिस्ट्री सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते हो ये होगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण हिस्ट्री सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाण हिस्ट्री सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है त्रिपाण हिस्ट्री सेंटर का फायदा ही फायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा, ठीक है दोस्तों। इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।